students tell me formula past continuous tense. Past continuous tense. चलो बोलो फार्मूला बोलिए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. पॉजिटिव का subject plus verb की first form plus ing plus object. सब्जेक्ट प्लस was were प्लस फर्स्ट फॉर्म plus ing plus object. Okay. And what will be there in negative? Subject plus verb plus not plus verb की first form plus ing. Okay. Now write down subject plus was were plus Not. plus plus were first form ing plus ing plus object. Okay. Then what will be there in interrogative? was were plus subject plus subject plus verb plus first form plus ing plus object plus question mark. object. Okay. Then plus question mark. ठीक है. Then WH word Single. okay can be used. अगर हमको इस तरह के sentences बनाने हैं तो उसके अंदर हम WH word यूज करेंगे. Okay. Now tell me about uses. Have you written this file? Yes, ma'am. Okay. So uses. We will start uses from here. Uses. Okay. So I have already told you uses. Can you tell me uses? First use. Tell me. It is used for an action It is used for an action or activity. an action or activity. Which was going. एक मिनट. Activity Which was which was going on at same past date or time. going on at Same past date or time. some same नहीं some हाँ. past date or time. Okay. Can you give any example of it? Now Payal, write down this. All of you write down this. First uses. And can you give any example of it? Past continuous tense का example दीजिए. Students, past continuous का example दीजिए. The rain was falling Yes. and the cows The- were grazing. Rain was falling and and the cows were grazing. the cows were grazing. Okay, students. So here is two things are happening in the same manner, in the same date, in the same time. So that is why दोनों जगह पर क्या यूज किया गया है? Continuous tense. Was plus falling and Were plus were plus grazing. Okay? Because of it was the same occasion and same time. That is why. है ना? लेकिन अगर same occasion और same time नहीं होता है, on that case हम क्या यूज करते हैं? Can you tell me? आप बताइए. जैसे कि कल मैंने आपको स्टडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई सॉ a snake when I was walking in the garden. अब देखिए इसके अंदर क्या है. इस सेंटेंस के अंदर टू कंडीशंस हैं.
ठीक है ना, सेम थिंग नहीं है, क्योंकि लगातार वो उस चीज को वॉच नहीं कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि उसने कहा कि आई सॉ स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ। ओके, और फिर उसके बाद जो कंटिन्यूअस प्रोसेस थी वो क्या थी, वॉकिंग। दैट इज वाई यहाँ पर जब कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, मूविंग प्रोसेस होती है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so have you written this? Yes, ma'am. Next, what is the second use? Have you written this example also? Yes, ma'am. Okay, so now tell me second use. It's also used for a dramatic. It's also Used for a dramatic action. used for a dramatic action. Which More dramatic action. Okay. Action. Next, which can be which can be new or more implemented. which Important. can be New or new or more important. Okay, so this one is here. It's also used for more dramatic things. जैसे कि, can you give any example of more dramatic thing? She lost her watch while she was sleeping. She lost her watch while she was sleeping. Okay, so what is the dramatic action here? More dramatic action, she was sleeping. Okay, so that is why here we use sleeping word, and this is more dramatic action, that is why we used here past continuous tense. Just as it is a simple thing that she lost her watch. ठीक है, गुम गई वॉच, कोई बात नहीं, लेकिन मोर ड्रामेटिक क्या है इसमें, जो कि ये बताया गया है कि वह सो रही थी. सो दैट इज वाई टू थिंग्स आर यूज्ड है, दो चीजें एक साथ यूज की गई हैं, जिसमें कि एक एक्शन तो क्या है, परमानेंट एक्शन है, क्या कि उसकी वॉच गुम हो गई. नेक्स्ट थिंग क्या है, जो कि आपकी कंटिन्यूस रनिंग में है, वो सो रही थी. सो दैट इज वाई हियर वी यूज्ड, कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एंड एनी अदर थिंग for past habits. Next, anything else? I have already told you adverbs. adverbs only. Okay, which adverbs? When, When, while, at the time, etc. Okay, when, while, at the time, yes ma'am. at the time, etc. बच्चों ये जो चीजें हैं, ये आपको when जो है ये क्लॉजेस में यूज होगा ओनली, है ना, क्योंकि दो सेंटेंसेस जब कंबाइन करोगे ना तभी आपका ये यूज होगा, और उसी में while भी यूज होगा, और at the time जो ओनली है जो कि यूज होगा एग्जैक्ट टाइम के लिए. ठीक है, so now all the things are clear to you in past continuous tense. Yes, ma'am. Okay, so now we will start next past perfect tense. Now write down past perfect tense. Okay students, we will start now past perfect tense. Then
पॉजिटिव फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस क्या यूज होता है इसमें? सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव। had, वो किस में होता है? सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैड। किस में आता है? present perfect tense, present हैज और हैव प्रेजेंट Present परफेक्ट perfect में। में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड। had, यस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब। First one. third form, फर्स्ट फॉर्म किसने बोला? थर्ड फॉर्म। third, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, okay, देन इन नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड which plus प्लस now, नॉट प्लस वर्ब which थर्ड फॉर्म third form, और प्लस Object. ऑब्जेक्ट। ओके, इसको और क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक चीज और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। हैड प्लस क्या आएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट subject, प्लस वर्ब Third form. थर्ड third फॉर्म form, प्लस object plus question mark, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हैव यू रिटन दिस? Yeah. yes no, आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आप करती हूँ। नेक्स्ट, राइट डाउन यूजेस। First point, it is used for an action began in the past began and completed in the past before another action. ओके, ये क्या होता है? इसमें पास्ट में ही शुरू होता है, उसी में कंप्लीट हो जाता है। बिगिन नहीं आ जाए, यहाँ पर आएगा बिगिन। Begin and completed in the past before another action, यानी कि शुरू भी होता है और कंप्लीट भी हो जाता है। जैसे the train had Gone when I left before we reached the station. देखिए, इसमें दोनों वर्ब जो है पास्ट में है। कैसे? ट्रेन जो है लेफ्ट हो चुकी थी जब हम स्टेशन पर पहुंचे, यानी हमारे पहुंचने से पहले। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है, दोनों वर्क एक साथ कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? हाँ, तो वह ये किसके लिए यूज होता है? हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म किसके लिए यूज होती है? जो कि काम कंप्लीट हो चुका हो। समझ गए? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हमारा एक बिफोर वर्ड यूज हुआ है। ओके, अब इसमें ज्वाइन करने के लिए इसके अंदर भी दो सेंटेंस है आपके। देखिए, 2 sentences आर ज्वाइंड है फ्रॉम दिस वर्ड। ठीक है, बिफोर से ये ज्वाइन किया गया है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं। बिफोर बी रीच्ड द स्टेशन,
और द ट्रेन हैड लेफ्ट। दो वर्क दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट वर्क क्या है, हमारा स्टेशन पर पहुंचना, और सेकंड वर्क है ट्रेन का जाना। तो इसमें वर्क की सेकंड फॉर्म यूज हुई है और इसमें हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म। क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ओके, Yes, ma'am. हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. Okay. Next. Second use. लिखिए, to indicate the duration of the time. To indicate the duration of the time. Time factor up to a given time in the past. Up to a given time in the past. कैसे? We will see this. इसमें देखिए क्या है, इसका एग्जाम्पल लिखिए। By the time I retired from the college, I had taught there for 25 years. बच्चों, इसके अंदर एक चीज हमको देखनी होगी, क्या बताया है ऑथर, क्या बता रहा है यहाँ पर आपको। बाय द टाइम आई रिटायर्ड, जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद फ्रॉम द कॉलेज आई हैड टॉट, मैंने वहां पर 25 इयर्स तक पढ़ाया। अब एक चीज आपको याद रखनी होगी इसमें कि अगर टाइमिंग्स दिया है, ओके, तो इसमें आपको जब टाइमिंग्स दिया है और वाई का इंडिकेशन मिल रहा है आपको, ठीक है, तब आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्लियर टू यू? Yes, ma'am. किस किस का इंडिकेशन देखेंगे, बाय द टाइम, ओके। नेक्स्ट इंडिकेशन क्या देखेंगे हम, टाइम पीरियड इज गिवन, ओके, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी गिवन, अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो दोनों को लिखना होगा, ओके। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. रब करूं, मैं रब इट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन कंडीशनल सेंटेंसेस। देखो बच्चों, मैं कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको खुद को आना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए थे ना, हाँ Yes, ma'am. हाँ, क्या था कंडीशनल सेंटेंसेस का, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, इफ क्लॉज में क्या यूज किया था अपन ने, मैम फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में था मैं ऐसे कह रही हूँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर मत जाइए, केवल कंडीशनल सेंटेंस का पास्ट फॉर्म बताइए मुझे। क्या बताया, हैड मैम शुड वुड, अरे बेटा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबऑर्डिनेट में क्या था, वुड है, शुड है,
Could could have. have, should have, should have, could have. and could have. Okay. Okay. Have you written this? अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल और लिखते हैं. एग्जाम्पल देखिए, इफ यू हैड वर्क हार्ड, had worked hard, you would have passed. बच्चों आपके पास में ये देखिए क्या चीज चल रही है, इसमें देखिए क्या बताया गया है. इफ अगर तुमने हैड वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत की, तो यू वुड हैव पास्ड, की होती तो तुम पास हो गए होते. समझ गए? इसका मतलब तुम पास नहीं हुए हो. तो क्या कहा उसने? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड. ओके, समझ आ गया? Yes, ma'am. तो क्या करना है? Work hard. क्या करना है भाई ज्योति? Card. वर्क हार्ड. यस, तो हमें वर्क हार्ड करना है और उसने किया ही नहीं था. ठीक है, तो नाउ द टाइम इज ओवर एंड ऑल द formulas and uses has been completed of past perfect tense. Now the past perfect tense is also completed. Clear to you? Yes, ma'am. हाँ बच्चों, एक बार पढ़िएगा, फिर इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर अपना कंप्लीट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. थैंक यू.